Okay ji. Now we are coming to look at the algorithm of the binary search in a linear array. So if you look at, so this is a binary search has been used as an फंक्शन. तो एक फंक्शन के थ्रू इसको यूज़ किया गया है. अब इस फंक्शन का काम जो इसकी बॉडी में जो एग्जीक्यूशन हो रही है जो लॉजिक की, वो हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे. लेकिन पहले थोड़ा सा इसका इस एल्गोरिथम में कौन से वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है. सो हियर ए इज़ अ sorted linear array. जिस तरह आपको कहा था ना कि for binary search it is mandatory that that you should have a sorted array, whether in ascending or in a descending order. So A is the name of the array which is sorted and in a linear form. Okay, the second point is with n elements. So the size of the array is n. So actually the n will tell you the size of the array. And S key is given item of information to search. So actually the S key variable is your search key, that is which contains the value that you want to find in a given array. So ये जो है इसको जो आप सर्च करेंगे यूज़र से यूज़र इसको इनिशियलाइज कर सकता है, आप खुद भी कर सकते हैं. तो ये दोनों केसेस में जो वैल्यू आप सर्च करेंगे एरे में वो इस वेरिएबल में स्टोर होगा. ठीक है. अच्छा. uh, the this algorithm, अच्छा इसका function क्या है? This algorithm finds the location of S key. If your S key is present in the array, then this algorithm will return the location of that particular search key. If it is present, then it will be a successful search. Otherwise, it will be a unsuccessful search. And in case of unsuccessful search, it will return a value of -1. And in a case of successful search, it will return the location of the search key, whether it is 0, 1, 2, or whatever within the size of the array. Okay, so this is binary search, the name of the function, and these two are the arguments, A and S key. A is for the linear array, and S key is the item you want to search in that array. Okay, now coming to the steps, there are 6 steps sequentially. So the first step says that you should initialize the segment variables. So you will use a couple of variables that you need to initialize first. As I have told you while explaining the example, that you need certain values to find the middle element of the array. One is the start location of the starting element, okay, or the end element. So you should start with the variable start is equal to 0. Why 0? Because the first element of the array is at location 0. That's why it is start from 0. And end will start from n minus 1. N minus 1 means n is the size of the array. So n minus 1 means if you count 0, then if you have, for example, 10 elements and you start from 0, so it will end at 9. That's why, and the size of the array is 10. So 10 minus 1 is equal to actually 9. So this is why it has been start variable has been start with the value 0, and end variable has been start with the value uh, n minus 1, size minus 1. If your size is, let's suppose, 10, so it will start from, it will initialize with the value 9. Okay, now coming to the most important variable, that is called mid variable. So mid is actually it will hold the location of the middle element of the array. So I have told you how to find the middle element. You just add the start location and the end location and then divide it by 2. So that will give you the mid location of the element of the array that you are supposing to find the mid element in that array. ओके, सो मिड विल बी इक्वल टू इंटीजर. जिस तरह मैंने कहा था, इंटीजर टाइप आपको लगाना होगा क्योंकि पॉइंट्स में भी आ सकता है आपके पास आंसर, और पॉइंट्स में लोकेशंस तो होती नहीं है. ठीक. सो दैट वाई इट इज इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट टू हैव अ इंटीजर टाइप for both start and mid. Okay, so now finding the middle element, you add the two elements start and end.
then divided by 2. So that will actually give you the, in this case 0 and 9 will add up. So 0 plus 9 is equal to 9 and divided by 2 is equal to 4.5. So 0.5 will be ignored because it is integer type. So 4 will be the answer and will be stored in the mid. So mid will hold the value of 4. So this is how you initialize the 3 variables. Now coming to the step 2. The step 2 will hold will actually have a loop, because here it is stated that repeat step 3, repeat steps 3 and 4 while. Okay? So there is a loop. Which loop? While loop. It is mentioned here. Okay? So in that loop, in that while loop, in the body of that while loop, step 3 and step 4 will be repeated, will be kept repeating until and unless these two conditions are true. Okay? And if you look at here, it is AND operator. It is AND. Okay? It is not OR, that if any one of this condition is true, then the body of the loop will be executed. No, both the conditions should be true, then the body of the loop will be executed. ठीक है, दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तो तब बॉडी ऑफ द लूप एग्जीक्यूट होगी. बॉडी ऑफ द लूप में क्या आएगा? स्टेप 3 एंड 4. वो हम आगे जाके स्टेप 3 एंड 4 देखते हैं. लेकिन स्टेप 2 का पर्पस क्या है? आपने एक लूप लगाना है, वाइल लूप, और उसके कंडीशंस में ये दो कंडीशंस लगानी है. ये कंडीशंस अब मैं एक्सप्लेन करने लगा हूँ कौन सी कंडीशन है, और इसकी बॉडी में स्टेप 3 और 4 आएंगे. So the first condition is just is that start less than or equal to end. ठीक है, जिस तरह मैंने आपसे कहा था कि स्टार्ट जो है वो नॉर्मली एंड वैल्यू से जो वेरिएबल है उससे उसकी वैल्यू कम होती है. वो उसकी बराबर भी हो सकती है और कम भी हो सकती है. लेकिन अगर स्टार्ट की वैल्यू एंड से ज़्यादा हो जाती है किसी भी एक स्टेज पे, तो इस स्टेज पे आपने फिर लूप से बाहर निकलना है. ठीक है, सो इसलिए ये कंडीशन यहाँ पे लगी है. सो इफ स्टार्ट वैल्यू इज लेस देन आर इक्वल टू एंड, देन दिस द कंडीशन विल बी ट्रू, और वो मिड फाइंड मिड जो एलिमेंट है वो फाइंड होता रहेगा. लूप चलता रहेगा, आप लूप से बाहर नहीं आएंगे जब वो कंपैरिजंस आप करते जाएंगे. अच्छा, सेकंड कंडीशन जो है वो है ए ऑफ मिड इज नॉट इक्वल टू एस की. इस तरह मैंने कहा था ना, आप जब एस की फाइंड करते हैं तो सबसे पहला काम क्या करते हैं? मिडिल एलिमेंट से एस की को कंपेयर करते हैं. अगर वो बराबर नहीं है तो फिर आप देखते हैं कि उसकी वैल्यू उससे ज्यादा है या कम है. लेकिन पहले आप चेक करते हैं वो बराबर है या नहीं है. तो अगर बराबर नहीं है तो तब आप चेक करते हैं ना कि उसकी वैल्यू ज्यादा है या कम है. अगर वो उसकी वैल्यू बराबर हो गई तो फिर तो आपको आगे जाने की जरूरत ही नहीं है. वो वही आपका सर्च की है, जो मिडिल एलिमेंट फाइंड हो गया, और यू जस्ट रिटर्न, वहीं से आप रिटर्न भी कर जाते हैं. ठीक है, तो इसलिए ये सेकंड कंडीशन ये है. तो इन दोनों में से कोई भी अगर अनट्रू होता है तो उससे आप लूप से बाहर निकलते हैं, अदरवाइज लूप में ही रहेंगे. अब लूप में क्या हो रहा है? स्टेप 3 एंड 4 ये अब देखते हैं. दिस इज इम्पोर्टेंट, इसी में ही सारा वो हो रहा है. अच्छा, स्टेप 3 को देख लें पहले. इफ अगर ये जो सर्च की है वो लेस देन है, जाहिर बात है अगर बराबर नहीं है तो फिर या लेस होगी या ग्रेटर होगी. तो इफ द सर्च की इज लेस देन मिड वैल्यू, ठीक है, अगर वो सर्च की वैल्यू कम है मिड से, तो इसका क्या मतलब है कि वो जो मिडिल एलिमेंट है उससे पहले के एलिमेंट्स में चांस हो सकता है कि ये मौजूद हो. तो जब आप पहले हिस्सा एरे का, मिड का पहला हिस्सा कंसिडर करेंगे और दूसरा हिस्सा इग्नोर करेंगे, तो उस केस में आपके पास स्टार्ट में कोई चेंज नहीं आएगा, अलबत्ता एंड में चेंज आएगा. एंड लेट्स सपोज अगर पहले 9 था और मिडिल एलिमेंट अभी 4 है, तो क्या हो जाएगा? आपका एंड जो नया बनेगा वो मिड -1 बनेगा. सो दैट वाई इफ एस की इज लेस देन मिड, देन सेट एंड इज इक्वल टू मिड -1. बस ये आपने एक थंब रूल याद रखना है. अगर एस की छोटी वैल्यू है मिड से, तो आपने एंड में चेंज करना है, और एंड क्या बराबर होगा? मिड -1 के. एल्स मीन यही ना कि अगर वो लेस देन नहीं है तो बड़ी वैल्यू होगी, ग्रेटर देन मिड होगी. सो इफ इट इज ग्रेटर देन मिड, इफ एस की इज ग्रेटर देन मिड, तो फिर आपका एंड चेंज नहीं होगा, स्टार्ट चेंज होगा. और स्टार्ट में फिर
मिड के साथ आपने +1 करना है, वहाँ एंड में आपने वो मिड के साथ -1 किया था, यहाँ स्टार्ट में आप मिड के साथ +1 करेंगे तो आपके पास नई वैल्यू स्टार्ट किया जाए। तो आया ये कंडीशन होगी या फिर ये कंडीशन होगी, इन दोनों में से एक होगी। यहीं पे आपका एंड ऑफ एफ स्ट्रक्चर आ जाता है। तो ये आपका वो एफ स्ट्रक्चर था। उसके बाद स्टेप 4 में अच्छा सर, अब जो है नया ज़ाहिर बात है, जब आपने एक नया एरे सब सेलेक्ट किया है, उसके स्टार्ट और एंड पॉइंट्स आपने वो कर दिए हैं, सेट कर दिए हैं, तो ज़ाहिर बात है अब उस नया एरे जो है, जो सब एरे है, उसका अगेन मिड पॉइंट आपने फाइंड करना है। तो उसका जो मिड पॉइंट आप फाइंड करेंगे तो वो स्टार्ट प्लस एंड डिवाइडेड बाई 2 होगा, इंटीजर टाइप वही रहेगा, ठीक है। तो एक नया मिड आपके पास बन जाएगा। तो जब नया मिड बन जाएगा तो ये तो उस लूप की बॉडी यहाँ पे ख़त्म होती है। तो अगेन जो वाइल लूप है उसकी कंडीशन चेक होगी विद द न्यू स्टार्ट एंड एंड वैल्यूज, ठीक है। तो उसकी वजह से फिर जो भी कंडीशन आती है, अगेन आपने नया सब एरे सेलेक्ट करना है, तो इस तरह आप आ जाएंगे, या फिर आप लूप से बाहर आ जाएंगे, ठीक है। तो लूप से जब आप बाहर आते हैं तो दो कंडीशंस है ना, इसकी वजह से आप बाहर आते हैं, क्योंकि वाइल में यहाँ पे दो कंडीशंस है, इनमें से कोई एक होगा तो आप बाहर आएंगे, फॉल्स होगा तो बाहर आएंगे। अच्छा जी, तो फॉर एग्जांपल अगर आप ए ऑफ मिड इज नॉट इक्वल टू एस की, अगर ये कंडीशन फॉल्स आ जाती है तो दैट मीन्स के अगर बराबर नहीं है तो बराबर होगी, तो अगर बराबर होगी तो आप स्टेप 5 पे आ गए। जब आप स्टेप 5 पे आ गए तो उस केस में आप ए मिड जो है एस की जो है वो ए मिड के बराबर अगर आ जाती है, इफ दिस आर इक्वल दोनों, दैट बात है। यहाँ पे जब आप फॉल्स होंगे तो नॉट इक्वल है तो इसका फॉल्स इक्वल होगा। तो इफ दिस आर इक्वल देन सेट लोकेशन इज इक्वल टू मिड। तो वही मिड जो है उसका जो लोकेशन है वो आप लोकेशन वेरिएबल को असाइन करें। जो एम आई डी मिड की जो भी वैल्यू है, वो जो भी वैल्यू आई है पीछे से वो आप एलओसी को दे देंगे और वही वैल्यू फिर रिटर्न होगी। और अगर ये कंडीशन नहीं है, अगर आप इसकी वजह से बाहर नहीं आए लूप से, तो फिर इसकी वजह से आप बाहर आएंगे। तो जब इस कंडीशन की वजह से आप लूप से बाहर आएंगे तो दैट मीन्स कि वो फिर आपका अनसक्सेसफुल सर्च कहलाएगा। ये सक्सेसफुल सर्च के लिए एग्जिट होगा लूप के लिए, और ये अनसक्सेसफुल। तो अगर आप इस कंडीशन के थ्रू लूप से बाहर आते हैं तो वो तो लोकेशन को वो मिड वैल्यू असाइन होकर रिटर्न हो जाएगी मेन फंक्शन में। अदरवाइज अगर आप इस कंडीशन के थ्रू वापस आते हैं, लूप से बाहर आते हैं, सो दैट शोज कि वो एक अनसक्सेसफुल सर्च था। सो उस केस में फिर आप एल्स सेट लोकेशन इज इक्वल टू -1, उसकी में फिर लोकेशन एलओसी जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू -1 सेट हो जाएगी और वो रिटर्न हो जाएगी मेन फंक्शन में, विच विल shows the success it is a unsuccessful search. Otherwise if it is a successful search then the mid value will be allocated to loc variable and that will be returned to the main function and will be displayed, ठीक है। सो यहाँ पे स्टेप 6 में आखिर में रिटर्न एलओसी, मतलब वो जो लोकेशन है उसमें जो भी वैल्यू है, अगर मिड की है तो सक्सेसफुल है, अगर -1 है तो अनसक्सेसफुल है, वो रिटर्न हो जाएगी मेन फंक्शन एंड दैट विल बी द एग्जिट फ्रॉम द फंक्शन। सो दिस इज how binary search algorithm works in a linear array, ठीक है। इसमें अगर किसी का क्वेश्चन है तो जरा पूछ लें। जी, एनी क्वेश्चन किसी का है? जी, एनी क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं है? No, sir. Okay, now going to the, अच्छा बस यहीं पे इसका एक एग्जांपल है, सो आई विल कवर क्विकली। C++ कोड है एक्चुअली ये बाइनरी सर्च के लिए। ये तो एल्गोरिथम था ना, आप किसी भी लैंग्वेज में इसको इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं, लेकिन इफ़ यू हैव टू राइट प्रोग्राम
तो ये उसका स्ट्रक्चर है। मैं मेनली प्रोग्राम को टच नहीं करूँगा, मैं ये जो बाइनरी सर्च का फंक्शन है मैं उसको ही टच करूँगा, क्योंकि मैंने यही एक्सप्लेन किया है ना आज के लेक्चर में। तो बाकी जो मेन प्रोग्राम है वो आपको पता होता है किस तरह आपने कंस्ट्रक्ट करना होता है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स। या आपके से पूछा जाता है कि इस तरह का आप प्रोग्राम डिज़ाइन करें तो आप बनाते हैं। हाँ, इसमें ये है कि ये जो फंक्शन प्रोटोटाइपिंग है या फंक्शन डिक्लेरेशन, तो मैंने कल भी एक्सप्लेन की थी कि ये इंटीजर टाइप है, उसका रिटर्न टाइप है, उस फंक्शन का बाइनरी सर्च उसका नाम है, और ये पैरेंथेसिस में उसके दो आर्गुमेंट्स है, एक एरे है और दूसरा वैल्यू है इंटीजर। बाकी ये n इज इक्वल टू 10 जो है ये ग्लोबल वेरिएबल है, दैट वुड बी एक्सेसिबल इन एवरी थ्रू एवरी फंक्शन। बाकी वही वो इनिशियलाइजेशन है और वेरिएबल्स की और वगैरह की, ठीक है। ये है कि सर्च की इंटर करना है, फिर उसको देखना है कि वो जो सर्च की आपने पास की फंक्शन में तो वो असाइन हो जाएगी, वो सक्सेसफुल है या नहीं है। तो ये उसके हवाले से बातें हैं, लेकिन आई विल मेनली एक्सप्लेन दिस फंक्शन। ठीक है जी। सो बाइनरी सर्च जो इसका नाम था इंटीजर, उसका रिटर्न टाइप है, मतलब ये फंक्शन जो वैल्यू रिटर्न करेगा उसका इंटीजर टाइप, उसका टाइप जो है डेटा टाइप वो इंटीजर है, और दो इसमें आर्गुमेंट्स पास हो रहे हैं, एक एरे है और एक एस की, ठीक है, जो कि सर्च की है। जिस तरह उसमें बताया गया था एल्गोरिथम में, अगर आप एल्गोरिथम लेकें तो फर्स्ट स्टेप क्या आता है कि वो इनिशियलाइज करे आप स्टार्ट को, एंड को और मिडल को फाइंड भी करें होने से। तो इंट स्टार्ट इज इक्वल टू 0, एंड इज इक्वल टू n-1 एंड मिड इज इक्वल टू स्टार्ट प्लस एन डिवाइडेड बाई 2। तो ये तो एग्जैक्टली वही था। अच्छा, फिर स्टेप 2, फिर वो वाइल लूप है, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप देख लें तो वाइल लूप लगा है, ठीक है, एलओसी, ये नेक्स्ट लाइन में होना चाहिए। सो वाइल, तो ये दो कंडीशंस है उसमें, C++ के कोड के थ्रू लिखे गए हैं, ठीक है। ये अगर आप देख लें यहाँ से, हाँ जी, ये दो कंडीशंस है वाइल के। फर्स्ट कंडीशन इज स्टार्ट इज लेस देन और इक्वल टू एंड। अगर यही कंडीशन है, स्टार्ट की वैल्यू लेस है और इक्वल या इक्वल है एंड के, तो ये आप सक्सेसफुल सर्च के डोमेन में जा रहे हैं। अगर स्टार्ट इन अ सेंस किसी भी टाइम पे एंड से वैल्यू इसकी एक्सीड कर जाती है, तो उस केस में फिर ये अनसक्सेसफुल सर्च के उस जोन में चला जाएगा। तो ये कंडीशन सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल के हवाले से है। एंड, यहाँ एंड ऑपरेटर है, मतलब दोनों कंडीशंस का ट्रू होना ज़रूरी है। और ये जो है ए ऑफ मिड नॉट इक्वल टू एस की, तो अगर नॉट इक्वल टू है तो फिर आपने नया एरे बनाना होगा ना, मिड और वो जो मिड और एंड वैल्यूज हैं उसको, और नई मिड वैल्यू और नई स्टार्ट या एंड वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। तो अगर वो मतलब अभी फाइंड नहीं हुआ, सक्सेसफुल सर्च के जोन में है लेकिन फाइंड नहीं हुआ अभी तक, तो ये कंडीशन उसके लिए है। और अगर जब फाइंड हो जाता है तो फिर ये कंडीशन फॉल्स हो के आप उससे बाहर आते हैं लूप से, ठीक है। ये दो कंडीशंस आप चेक करते हैं। अच्छा, अब अगर लेट सपोज आप दोनों कंडीशंस ट्रू हैं, तो फिर आप क्या चेक करते हैं, इफ एस की इज लेस देन एमिड। अगर जो आपकी सर्च की है वो अगर लेस है, जो मिड एलिमेंट है, तो वो पहले सेगमेंट में आएगा ना, वो जो सब एरे हैं, तो उसमें आप एंड चेंज करते हैं और एंड को सेट करते हैं मिड-1। और अगर वो सर्च की लेस देन नहीं है, ग्रेटर देन है, तो फिर आप क्या करते हैं, स्टार्ट को चेंज करते हैं, एंड को नहीं चेंज करते, और स्टार्ट को मिड+1 करते हैं। तो ये दो कंडीशंस वही हैं जो कि यहाँ मैंने एक्सप्लेन किए थे, ठीक है, कंप्लीटली यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किए थे। तो ये एफ स्ट्रक्चर वो वाला था। जब इन दोनों पे वो डिसाइड हो जाता है कि एंड को चेंज होना है या स्टार्ट को चेंज, उसके बाद आप एक नया मिड फाइंड करते हैं। इन दोनों में से एल्स है ना, इफ एल्स है ना, या ये होगा या ये वाला होगा या फिर ये वाला होगा, तो उस हवाले से फिर नया मिड आपका फाइंड होगा। तरीका वही है, स्टार्ट प्लस एंड डिवाइडेड बाय 2। जब लूप खत्म होता है तो दोबारा आप चेक करते हैं, ठीक है। तो वो आपके पास एक नई मिड वैल्यू आएगी ना, तो वो आप एस की के साथ कंपेयर करते हैं। तो अगर है तो लूप से बाहर आ जाते हैं, अगर नहीं है तो फिर दोबारा चेक होती है कि वो बड़ी है या छोटी है। इस तरह ये चलता रहता है। जब आपका मिड फाइंड हो जाता है, वो इसकी के बराबर हो जाता है, तो फिर आप लूप से बाहर आते हैं, एफ मिड ये फिर हो जाता है। इफ ए ऑफ मिड इज इक्वल टू एस की, मतलब अगर दोनों बराबर है तो फिर आप क्या करते हैं, लोकेशन को मिड की वैल्यू दे देते हैं और फिर वो रिटर्न होगा। अगर ये नहीं है तो फिर दूसरे कंडीशन से आप बाहर आए होंगे,
अनसक्सेसफुल सर्च के थ्रू, तो वो फिर उस केस में आप -1 उसमें लोड करते हैं एलओसी में, तो एलओसी में तो या तो मिड आएगा अगर आप इस कंडीशन के थ्रू आते हैं, और अगर आप इस कंडीशन के थ्रू आते हैं तो फिर एलओसी में -1 होगा। दोनों कंडीशन में फिर आप एलओसी की वैल्यू, लोकेशन की वैल्यू वापस करते हैं, तो वो कहाँ जाएगी, वो यहाँ आ जाएगी, सॉरी यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। जब यहाँ पे स्टोर हो जाएगी तो अगर वो -1 है तो अब -1 आया था तो ये वाला डिस्प्ले हो जाएगा कि भाई सर्च की इज नॉट इन देयर, और अगर कोई लोकेशन आई है तो फिर आप उसको सर्च वो प्रिंट कर देंगे डिस्प्ले में कि जी ये उसकी लोकेशन है, फाइंड हो गया, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। अभी इसमें कोई किसी का सवाल है तो जरा पूछ सकते। अच्छा जी, किसी के वो है क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं अभी। नो क्वेश्चंस। अच्छा, मैं अभी अटेंडेंस दोबारा लेता हूँ तो काइंडली मुझे रिस्पांस करें कि जी आप प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है जी। सो मुदस्सिर शाह आप प्रेजेंट है? मुदस्सिर शाह प्रेजेंट सर। ओके जी। यस सर। अच्छा जी, अच्छा मुदस्सिर शाह प्रेजेंट। अच्छा, मोहम्मद अनीसुर रहमान है? मोहम्मद अनीसुर रहमान, अच्छा नहीं है। फवाद अली शाह है? फवाद अली शाह, सर क्लास तो ज्वाइन की है। हाँ जी फवाद अली, मैसेज करे या वॉइस पे बताएं प्रेजेंट है? फवाद अली शाह। अच्छा, हसीबुल हक, हसीबुल हक, असदुल्ला, शाह फहद, शाह फहद है? यस सर। शाह फहद आप प्रेजेंट हैं? यस सर। ओके, शाह फहद प्रेजेंट है। यासिर हुसैन, यासिर हुसैन, यासिर हुसैन, अच्छा मोहम्मद नबील, मोहम्मद नबील, यस सर। अच्छा मोहम्मद नबील प्रेजेंट है। फ़हीम शहबाज, फ़हीम शहबाज नहीं है। मोहम्मद अयूब, मोहम्मद अयूब, ये आपका नाम नजर आ रहा है लेकिन आप रिस्पांस क्यों नहीं कर रहे हैं? मोहम्मद अयूब, इसका यही मतलब है ना कि आप क्लास तो नहीं ले रहे हैं जब आप रिस्पांस ही नहीं कर रहे हैं। अटेंडेंस तब काउंट होगी जब आप रिस्पांस करेंगे कि जी हाँ मैं प्रेजेंट हूँ।
मोहम्मद अयूब, चलें इसको छोड़े। जुनैद खान, Yes, sir. जुनैद खान प्रेजेंट है, जुनैद खान प्रेजेंट है, ठीक है जी। सैयद मोहम्मद नोमान, Yes, sir. सैयद मोहम्मद नोमान, Yes, sir. ओके जी, प्रेजेंट है। आकिब हबीब, आकिब हबीब नॉट प्रेजेंट। शहजाद अहमद, Yes, sir. शहजाद प्रेजेंट है। सुलेमान खान, सुलेमान खान, सुलेमान खान प्रेजेंट है, प्रेजेंट था पहले, उसने वही पूछा था, ठीक है। बिलाल खान, बिलाल खान प्रेजेंट है कि नहीं? बिलाल खान, और जिसकी अटेंडेंस हो गई वो जा सकते हैं। हाँ जी, जिनकी अटेंडेंस हो गई वो जाए। थैंक यू सर। बिलाल खान नहीं है। नासिर खान, मियाँ आफ्ताबुद्दीन, हाफिज उमर खान, आसिम अली खान। जी किसी की अटेंडेंस रहती है तो अभी बता दें। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं फवाद सर। जी फवाद अली शाह जी, आपकी अटेंडेंस आ गई है, ठीक है। फिर टाइमली वो रिस्पांस किया करें ना, फिर पता नहीं चलता कौन एब्सेंट है और कौन प्रेजेंट। का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। जी यासिर हुसैन, जी सर। आपने क्लास अटेंड की? आपने क्लास अटेंड की यासिर? जी। आपने क्लास अटेंड की? यस। जी दोबारा बोलें। यस। अच्छा, आज क्या टॉपिक कवर हुआ? जी यासिर हुसैन, क्या टॉपिक कवर हुआ आज? हेलो सर। आज कौन सा टॉपिक मैंने किया? यासिर आपसे पूछ रहा हूँ। हेलो। आपने आज की क्लास अटेंड की या नहीं? हेलो, सर। आपको एब्सेंट मार्क किया जाता है। सर मैंने अटेंड की सर। मैंने फर्स्ट वाले पेज में साउंड आ रहा था, लेकिन ये सेकंड जब आपने वो लिंक शेयर किया उसमें आवाज नहीं आ रहा था सर। हेलो। ठीक है जी, ठीक है, आपकी अटेंडेंस हो गई, हो जाती है। अयूब, मोहम्मद अयूब नाम है ना आपका? यस सर, यस सर। अच्छा, पहले उसमें सेशन में कौन सा टॉपिक था? सर वो बाइनरी सर्च हमने पढ़ा सर। अच्छा जी, ठीक है। अच्छा ओके जी, आप जा सकते हैं। यासिर हुसैन, आप रिस्पांस नहीं दे रहे।
हेलो, हेलो। आप कहाँ पे हैं? यासिर हुसैन, आप मुझे फिर कॉल कर लें, ठीक है? मैं सेशन को ख़त्म कर रहा हूँ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। जी